Hello, dear learners. This is Himanshi Garg, your mathematics mentor. I welcome you on my YouTube channel, CNC Mathematical Classes. Today, we are going to start a new mathematical series which is for real and complex analysis. Generally, the students which are in 6th semester, you all learn this maths in your 6th semester, whose first chapter is Jacobians. We're going to tackle all the problems in this chapter, and line wise we are going to cover all the syllabi of this book, and after that we are going to start another course of your BSc, BA, BCom maths and much more for higher mathematics. So without wasting time, let us start, students. Firstly, Jacobian was given by a mathematician whose name was Carl Gustav Jacobi. As you all know the concept of determinants, you all are well known about the टॉपिक डेटरमिनेंट. आपने मैट्रिक्स और डेटरमिनेंट्स के चैप्टर में 11th क्लास में जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं उन्होंने डेटरमिनेंट और मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा होगा. जैकोबियंस जो है वो भी कुछ डेटरमिनेंट जैसा ही है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस, इसका यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन डेटरमिनेंट का जो है इसमें थोड़ा सा यूज़ होता है. तो हम देखते हैं सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या है जैकोबियन की. जैकोबियन, इफ u and v are two functions of independent variable x and y, and the condition which is required to define the Jacobian is that they must have first order partial derivative. हमें अगर जैकोबियन डिफाइन करना है दो फंक्शंस u और v के लिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि u और v जो है वो फंक्शन होने चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y के, एंड सेकेंडली फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है हमारा वो एग्जिस्ट करना चाहिए. तो हम जैकोबियन जो है जिसको हम कैसे लिखते हैं, जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y, या इसे ऐसे भी लिखा जाता है कर्ल ऑफ u, v ओवर कर्ल ऑफ x, y इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ. कैसे लिखेंगे आप डिटर्मिनेंट में, कर्ल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x रो वाइज, partial derivative of u with respect to y, and then second function partial derivative of v with respect to x and partial derivative of v with respect to y. This is what we called Jacobian. सिंपली जो जैकोबियन है उसमें हमें क्या चाहिए, फंक्शंस चाहिए जो किन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हों. यहाँ पे हमने दो फंक्शंस की बात की है u and v which are functions of independent variable x and y. If we want to say, if we are having u, v and w, three functions in independent variable x, y and z, then also we can define Jacobian. हम कैसे लिख सकते हैं Jacobian को, कर्ल ऑफ u v w with respect to curl of x y z, which is equal to, students, determinant of curl u over curl x, curl u over curl y, curl u over curl z. Similarly, curl v over curl x in second row, curl v over curl y and curl v over curl z. Then similarly, curl w over curl x, curl w over curl y and curl w over curl z. जैकोबियन इज सिंपली लाइक अ डिटर्मिनेंट, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कुछ डिफरेंट हैं. इन दिस मैथमेटिकल सीरीज विच आई हैव स्टार्टेड टुडे, वी आर गोइंग to learn its definitions, various examples and some difficult problems, and after that we are going to do some of applications of Jacobian, that where Jacobians are generally used. In this mathematical series we are going to cover all the concepts of Jacobian. Now next point is an important point which I want to discuss with you guys is that whether you think that is it necessary that number of independent variables here that we are used is x and y are 2 and number of functions is u and v, and here again after that we take u, v and w, three functions which are in functions of independent variable x, y and z. क्या ऐसा ज़रूरी है कि इनकी क्वांटिटी और इनकी क्वांटिटी जो है हमेशा इक्वल हो? सो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है. हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो हमारे पास नंबर
ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है हमारे पास, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शंस. सो स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट जो हमें डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा n क्रॉस n की मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है. मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का सेम होना जरूरी है. तो अगर आप ये सोचें कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर ज़्यादा हो गए या नंबर ऑफ फंक्शंस अगर ज़्यादा हो गए, देन हाउ विल यू बी एबल टू डिफाइन द टर्म जैकोबियन? देन आई विल टेल यू डेफिनेटली. लेट अस टेक टू फंक्शंस u and v सच एज. किस तरह से हम उसे ले रहे हैं? u is function of x, y, z and v is again function of x, y, z. Here we are taking two independent variables, sorry, three independent variables x, y and z. x, y, z are your independent variables and two functions which are u and v. Now to define its Jacobian, what we have to find is curl u over curl v with respect to curl x by curl y, curl u comma v with respect to curl of y comma z and curl of uv with respect to curl z comma x. Yes students, you are not able to take here curl x, y, z simultaneously. आपको डिटर्मिनेंट जो है वो इस तरह से होता है कि रो और कॉलम्स जो हैं उनके हमेशा इक्वल होते हैं उनके नंबर. तो अगर आपको गिवन हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फंक्शंस, देन लाइक दिस यू कैन डिफाइन देयर जैकोबियन. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? इसके बाद वी आर गोइंग टू डिफाइन अ थ्योरम. What it states that is, if the functions u1, u2 up to so on un are of form, किस फॉर्म में हमको ये गिवन है स्टूडेंट्स? u1 is equal to function of x1, comma u2 is equal to function of x1, x2. क्या देख सकते हैं आप कि u1 जो है वो सिर्फ x1 का फंक्शन है और जो u2 है वो x1, x2 दोनों का फंक्शन है. उस तरीके से u3 जो है हमें वो कैसे गिवन है? फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 एंड अप टू सो ऑन. You are able to understand the pattern. What you can write for un is, this is the function of x1, x2, x3 sorry, up to so on xn. Here what we have to prove that is that curl of u1, u2 up to so on un with respect to x1, x2 up to so on xn is equal to curl u1 by curl x1, curl u2 by curl x2 up to so on curl un over curl xn. दिस इज योर थ्योरम. आपको ये प्रूव करना है कि अगर इसका आप जैकोबियन निकालना चाहते हैं सच दैट फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है कि u1 इज फंक्शन ऑफ x1 ओनली, u2 is function of x1 and x2, u3 is function of x1, x2, x3 and up to so on. तो आप इसको इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब इसका अगर हम प्रूफ देखें तो हमें कैसे प्रूफ करना है? जैकोबियन बेसिकली ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये बेस की तरह काम करता है आगे वाले चैप्टर्स के लिए. अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप आगे प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पाएंगे. सो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा. हमें u1, u2 और un अप टू सो ऑन un जो है हमें डिफाइन किया है और हमें इसकी वैल्यू चाहिए. तो हम LHS जो है पिक कर लेते हैं, जैसे छोटी क्लासेस में हम करते हैं. हम जनरली LHS को पिक करते हैं और RHS पे पहुंच जाते हैं, या फिर हम RHS को भी पिक कर सकते हैं. वो चीज़ जो है हमारी गिवन क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करती है कि हमें क्या प्रूफ करना है और क्या हमें गिवन है. सो अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या है? कर्ल ऑफ u1, u2 अप टू सो ऑन un अपॉन कर्ल ऑफ x1, x2 अप टू सो ऑन xn. ये किसके इक्वल होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ. लिखते जाइए स्टूडेंट्स. फर्स्ट रो में क्या आएगा आपके पास? partial derivative of u1 with respect to x1, partial derivative of u1 with respect to x2 and up to so on. इससे पहले जो है हमने दो फंक्शंस के लिए, तीन फंक्शंस के लिए जब लिखा था तो हमने ऐसे ही डिफाइन किया था कि u का पार्शियल डेरिवेटिव आप फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उन सब की टर्म्स में. फिर सेकेंड रो हम v के लिए यूज़ करते हैं और थर्ड रो w के लिए एंड अप टू सो ऑन. अगर हमारे पास यहाँ पे n फंक्शंस हैं
u1 u2 अप टू सो ऑन un। तो उसके डिटर्मिनेंट में आप फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, u1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, देन partial derivative of u1 with respect to x2, partial derivative of u1 with respect to x3, and up to so on partial derivative of u1 with respect to xn. Again in another row, curl u2 by curl x1 obviously, curl u2 by curl x2, curl u2 by curl x3, and up to so on curl u2 by curl xn. And doing from like this, we can get in the last row, that is the nth row, is curl un. Okay, curl un over curl x1, curl un over curl x2, curl un over curl x3, and up to so on curl un over curl xn. This is what we get. This is what we get. Okay, so अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर हम बात करते हैं तो कर्ल u1 ओवर कर्ल x1 की, तो ये हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं बिकॉज u1 इज फंक्शन ऑफ x1, फाइन। लेकिन अगर आप बात करते हैं कर्ल u1 ओवर कर्ल x2 की, u1 is not a function of x2, so when we find out the partial derivative of u1 with respect to x2, what we get is definitely a zero quantity, right? Similarly, when you find the partial derivative of u1 with respect to x3, we again get a 0, and up to so on we get another 0. Here in first row only one quantity is there which may or may not be 0. It is possible that it becomes 0. It is not necessary that it is always non-zero, but the surety of the rest of elements in the first row is that these all are 0 because u1 is neither a function of x1 nor x2 nor x3 up to so on nor xn. Similarly, u2 is a function of x1 and x2. तो आप इन्हें नॉन जीरो रखिए और बाकी सबको आप यहाँ पर जीरो कर दीजिए, एंड अप टू सो ऑन जब आप nth पर जाएंगे तो हमारे पास जो un है इज अ फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn. सो आप किसी के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये क्या होंगे, जीरो होंगे, फाइन। तो इसके बाद हमें क्या मिल गया, अब क्या कह सकते हैं, हमारी जो डिटर्मिनेंट हम सोल्व कर रहे थे, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी वो थी हमारे पास कर्ल u1 ओवर कर्ल x1, जिसे हम एज इट इज रखेंगे। उसके बाद हमें 0 मिला, अगेन अ 0 एंड अप टू सो ऑन 0, फाइन। सेकेंड रो की जब हमने बात की तो हमारे पास क्या था, कर्ल u2 ओवर कर्ल x1, कर्ल u2 ओवर कर्ल x2, एंड देन वी गेट अ 0 एंड अप टू सो ऑन 0, and proceeding like this and up to so on in the nth row, what we are having, curl un by curl x1, curl un over curl x2, and up to so on curl un over curl xn. अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं तो इसके ऊपर भी आपको 0 मिलेगा। तो ये जो एंट्रीज होती हैं इन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल एंट्रीज, या कह लीजिए कि ये हमारा डायगोनल बन रहा है। और जब हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं और उसकी डायगोनल एंट्रीज से ऊपर सारा का सारा 0 हो जाता है। आपने अगर पढ़ा हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की जब भी आप बात करते हैं तो उनका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। आप इस चीज को एक रिजल्ट की तरह ध्यान रख सकते हैं स्टूडेंट्स, चाहे तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स से समझाऊं, 2x2 की तो बहुत आसान है, आप खुद भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको 3x3 की मैट्रिक्स से अगर एक समझाऊं, इसी तरीके से मैं अगर ले लूं 1 2 3 0 0 0 -1 0 एंड 6 से, ठीक है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट अब निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम रो वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं अगर डिटर्मिनेंट को, देन 1 इंटू हम इसे छोड़ते हैं, इसे छोड़ते हैं और इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं, राइट। तो ये क्या मिल जाएगा 2 × 3 and this becomes 0, and again next is -0 into any quantity, doesn't matter, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। अगेन हम इससे करेंगे तो दिस इज ऑल्सो 0। तो हमें मिला क्या, अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसी तरीके से आप 4x4 के लिए 5x5 के लिए चेक कर सकते हैं। तो इससे आप रिजल्ट की तरह याद रखिए, अगर आपके पास कभी भी कोई भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आपके पास गिवन है तो उसका आप डिटर्मिनेंट जो है आप कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो ये हमें क्या मिल गया, कर्ल u1 by कर्ल x1 इंटू कर्ल u2 by कर्ल x2 अप टू सो ऑन कर्ल un by कर्ल xn विच इज RHS, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स।
यही हमें प्रूव करना था कि जो जैकोबियन है u1 u2 अप टू सोन un का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 अप टू सोन xn कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ओके फाइन। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो ना, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आई डोंट नो, कुछ स्टूडेंट्स को शायद पता हो, कुछ को ना भी पता हो। जब भी हम ये क्राइटेरिया हम इस तरीके से कोई चीज़ लिखते हैं लाइक x1 x2 x3, इसे स्टार बना देती हूँ, x1 x2 x3 एंड अप टू, जब भी हमें सो ऑन लिखना होता है ना, तो ऐसे नहीं है कि आप एक लाइन लगा दीजिए या आपने 2 डैशेस लगा दिए या 4 डैशेस लगा दिए, आपकी मर्जी से नहीं। हमारा जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है लिखने का, वो हमारा हमेशा ही कैसे रहता है, x1 x2 x3 अप टू सोन, या तो 3 डॉट्स आप यूज़ कीजिए या 3 डैशेस को आप यूज़ कीजिए, उसके बाद आप लिखिए xn या जो भी आपकी लास्ट टर्म है। ये हमारा स्टैंडर्ड वे होता है। जब भी आप अच्छे ऑथर्स की बुक को देखोगे तो जनरली आप ये चीज़ नोट करोगे। ये जस्ट ऐसे ही था नॉलेज के लिए। ओके फाइन। अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो जैकोबियंस में, तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारे पास, ये चीज़ मुझे तो देखो एमएससी में जाके पता चली थी, मुझे नहीं पता आज स्टूडेंट्स को पता है या नहीं पता है, लेकिन छोटी सी बात है बिल्कुल। कई बार हम नोटिस भी कर लेते हैं इस चीज़ को कि जनरली 3 डॉट्स या 3 डैशेस का ही हम कॉन्टिन्यूस, मतलब ये दिखाने के लिए कि हाँ अप टू सोन कॉन्टिन्यूटी चल रही है, इसके बाद ये ऐसे ही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये एक स्टैंडर्ड वे है लिखने का स्टूडेंट्स, इसे फॉलो किया जाता है। कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ऐसे ही माइंड में आ गया तो आपको बता दिया मैंने, फाइन। उसके बाद हमारे पास क्या है, थ्योरम चेन रूल ऑफ जैकोबियन। आपने चेन रूल के बारे में सुना होगा। जनरली आप पार्शियल डेरिवेटिव्स में अगर आप बात करें चेन रूल की, तो क्या होता है हमारे पास, अगर u और v बिना स्टेटमेंट, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि चेन रूल होता क्या है, जैसे मैं आपको समझाऊँ कि u एंड v आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई। जनरली ये एरो डायग्राम से काफ़ी अच्छा समझ में आता है, अगर आप थ्योरेटिकली सब कुछ लिखते हैं उसके बजाय अच्छा रहता है ये। तो यू वी अगर फंक्शन है एक्स वाई के एंड एक्स वाई अगर फंक्शन है आर एस का, तो आप क्या कह सकते हैं डायरेक्टली कि यू वी जो है वो फंक्शन है किसके, आर एस के। तो हम जनरली डेरिवेटिव का आपने चैप्टर जब पढ़ा होगा 9th 10th में 11th में, जब भी आपने डिफरेंशिएशन सीखा है, तो वहाँ पे भी आपने एक चेन रूल पढ़ा होगा। जैसे हम ऐसे लिखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, और अगर मान लो y और x जो है वो अगर मान लो फंक्शन है किसी और वेरिएबल के, मान लो मतलब मैं ऐसे लिख दूं कि आप t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। ये वैल्यूज़ को अगर आप निकाल लें dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी, तो इनकी हेल्प से चेन रूल है ये भी हमारा कि इनको आप जब डिवाइड करते हैं तो हमें dy बाई dx ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप डिनोमिनेटर्स को इनके काट देंगे, dt से dt कट गया और ये dy बाई dx को, नहीं, हमें दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन ये हमारा चेन रूल है कि अगर हमें dy बाई dx निकालना है, अगर x और y फंक्शन है हमारे पास t के, तो हम क्या करेंगे, x का आप डेरिवेटिव निकालिए t के रिस्पेक्ट में, आप y का डेरिवेटिव निकालिए t के रिस्पेक्ट में, तो आप dy बाई dx को ऐसे इवेलुएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारी थ्योरम पे आते हैं। जो हमारी चेन रूल की थ्योरम है जैकोबियन के लिए, वो हमें क्या कहती है। सो हमारी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो क्या है, नोट कीजिए, इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम जनरली 2 से स्टार्ट करते हैं और उन्हें जनरलाइज कर देते हैं, हमारे लिए काम आसान हो जाता है। अगर u और v दो फंक्शंस हैं 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y के, और x और y जो है विच आर देमसेल्व्स फंक्शंस ऑफ r एंड s, तो हमारा जो चेन रूल है हमें क्या कहता है, u और v अगर फंक्शंस है x और y के, और x और y फर्दर फंक्शंस है r और s के, तो चेन रूल हमें क्या कहता है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है u v का विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स r कोमा s, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y एंड मल्टीप्लाई है ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x y विद रिस्पेक्ट टू r s। ये हमें जो है क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं। हमारे पास फंक्शंस हैं u v किसके, एक्स वाई के, एक्स वाई किसके फंक्शन है, आर और एस के, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं u और v का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, और इनका आगे आर एस के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको प्रूव करनी है आप अंधाधुंध चल पड़े, नहीं, आप क्वेश्चन को देखिए, व्हाट वी वांट टू प्रूव एंड व्हाट इज गिवन टू अस। सो वी हैव टू प्रूव this quantity equal to the multiplication of these 2 quantities, fine।
तो सो वट वी आर हैविंग कर्ल यू वी ओवर कर्ल आर एस। आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिए आपको कहाँ पहुंचना है। अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो डेफिनेशन से आप लिखेंगे, अब आपको अच्छे से निकालना आ गया होगा। कैसे लिखेंगे? कर्ल यू ओवर कर्ल आर, कर्ल यू ओवर कर्ल एस, सेकेंड रो में वी को लिखेंगे, कर्ल वी ओवर कर्ल आर, कर्ल वी ओवर कर्ल एस। हमें क्या करना है? इन सब की वैल्यूज निकालनी है और इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल प्रूव करना है। फाइन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी वैल्यूज जो है वही निकाल लेते हैं। सो कर्ल यू बाय कर्ल आर, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि यू वी जो है हमारे पास वो फंक्शंस हैं किसके? एक्स वाई के, और एक्स वाई फंक्शंस हैं किसके? आर एस के। तो अगर आप u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं r के रिस्पेक्ट में, तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखिए कि u किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। मैं आपको इसको लिखने का तरीका बताती हूँ। जिन स्टूडेंट्स को पता है वेरी गुड, जिन्हें नहीं पता है नो प्रॉब्लम, सीख रहे हैं आप अभी इन चीज़ों को। अगर u v जो है वो फंक्शन है x y के, तो आप क्या लिखिए? u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। फाइन। उसके बाद हमें डिनोमिनेटर में r चाहिए, मतलब कि अब देखिए, अब हमें u का डेरिवेटिव हमने बताया x के रिस्पेक्ट में। अगर देखें कि x जो है वो किसका फंक्शन है? r और s का फंक्शन है, राइट। y जो है वो भी r और s का फंक्शन है। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं? x का पार्शियल डेरिवेटिव जिसका फंक्शन ये है। अब ये r का भी फंक्शन है और s का भी फंक्शन है, लेकिन हमें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r निकालना है, तो हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r यूज करेंगे। सिमिलरली y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ इसे। अगर आपको u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r निकालना है, तो आप पहले देखिए कि इनके बीच में क्या आ रहा है। लिखिए u है फंक्शन x और y का, तो u को लिखिए x के रिस्पेक्ट में, u को लिखिए y के रिस्पेक्ट में, थोड़ा सा स्पेस देके प्लस लगाइए। उसके बाद x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। अब जिन्हें नहीं पता, ये क्वेश्चन भी आ सकता है माइंड में कि हमने s क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज़ कैसे आई। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, इस पे वीडियो बना दूंगी कि आप कैसे जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स को लिखा जाता है इस तरीके से। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है जब एक से ज़्यादा फंक्शंस हमें गिवन होते हैं। फाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी हमें चाहिए इज कर्ल यू बाय कर्ल एस। सो स्टूडेंट्स, कर्ल यू बाय कर्ल एस को जब आप लिखेंगे तो इसको लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। u is a function of x and y. Similarly, you are going to write curl u over curl x plus curl u over curl y. Fine. Now, the x and y are further function of r and s, and we also want s. So, we are going to write curl x over curl s एंड कर्ल वाई ओवर कर्ल एस। आप अगर ये चेक करना चाहते हैं ना कि आपने सही लिखा है नहीं, तो स्टूडेंट्स आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम ऐसे कहते हैं ना कि छोटी क्लासेस में, हाँ इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, काटा नहीं है, दिस इज चेन रूल। लेकिन आप वेरीफाई करने के लिए, समझने के लिए ऐसे देख सकते हैं कि आप एक्स को एक्स से कैंसिल करेंगे, सो वी आर गेटिंग कर्ल यू ओवर कर्ल आर विच इज द सेम एंड कर्ल यू ओवर कर्ल आर विच इज द सेम, सो इट इज राइट वे। फाइन। सिमिलरली फॉर कर्ल यू बाय कर्ल एस के लिए जब आप देखेंगे, आप कर्ल एक्स को कर्ल एक्स से काटिए, मतलब काटना नहीं है, देखिए एक बार के लिए कर्ल यू बाय कर्ल एस ही बनाया है आपने, कर्ल यू बाय कर्ल एस ही बनाया है। सो श्योर हो जाइए कि आपने ये बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमें चाहिए इज कर्ल वी ओवर कर्ल आर। तो इसे जब आप लिखेंगे कर्ल वी ओवर कर्ल आर और कर्ल वी ओवर कर्ल एस लिखना है। सो स्टूडेंट्स लिखिए इसके साथ से जल्दी जल्दी। कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स आप लिखेंगे एंड कर्ल वी ओवर कर्ल वाई आप लिखेंगे। ठीक है, अब तो ये चीज़ें आपको आ गई है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी समझिए इसे। हमारे पास यूट्यूब में बड़ा ही अच्छा फंक्शन है, आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैम काफ़ी फास्ट आप बोल रही हैं, हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है, तो आप स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। और अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट भी कर सकते हैं, 2x पे चलाइए, नो प्रॉब्लम। फाइन। अब देखिए कर्ल v ओवर कर्ल x आपने लिखा एंड अगेन x इज अ फंक्शन ऑफ r, राइट, v इज अ फंक्शन ऑफ y एंड फर्दर y इज अ फंक्शन ऑफ r। अंडरस्टूड? अगेन कर्ल v ओवर कर्ल x की जब आप वैल्यू लिखेंगे, कर्ल v इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस v इज अ फंक्शन ऑफ y, राइट। अब हमें देखना x और y किसके फंक्शन है, तो वो किसके फंक्शन है? r और s के। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू s चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो आप इसे लिखिए कर्ल x ओवर कर्ल s एंड कर्ल y ओवर कर्ल s। फाइन। जब आप इन वैल्यूज को
आप यूज़ करेंगे इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली आपको इनकी मल्टीप्लाई मिलेगी। या फिर आप आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब ना आप इस RHS जो है ना इसको डेफिनेशन से खोल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऑटोमेटिकली जब आप इन वैल्यूज़ को इस डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे तो हमें दोनों चीज़ें इक्वल मिल जाएगी। फाइन, तो हम RHS जो है उसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। RHS जो है हमारे पास क्या है, कर्ल ऑफ u कोमा v ओवर कर्ल ऑफ x कोमा y इंटू कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ x कोमा y विद रिस्पेक्ट टू कर्ल ऑफ r कोमा s। जब आप इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लगाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट आप लिखिए। अब तो आपको ये आ गई है तो जल्दी जल्दी से लिखिए, कर्ल यू ओवर कर्ल x एंड कर्ल यू ओवर कर्ल y। सेकेंड रो जो है उसमें हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, कर्ल v ओवर कर्ल x एंड कर्ल v ओवर कर्ल y। फाइन, सेकेंड डिटर्मिनेंट बनाइए मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू जो है उसको आप यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब फंक्शन हमारे पास x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास r और s है। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स कि x और y को तो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही लेना है, u और v को फंक्शन ही तो लेना है। ये हमारी जस्ट नोटेशंस होती है, हमें एग्जामिनर कैसे भी चेंज करके देख सकता है, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। और सेकेंड रो में आप क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू r एंड s। सो राइट इट, कर्ल y ओवर कर्ल r एंड कर्ल y ओवर कर्ल s। जैसे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही डिटर्मिनेंट के अंदर जो है हमारी टर्म्स मल्टीप्लाई होती है। कैसे करते हैं हम, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विद सेकंड कॉलम फॉर सेकंड एलिमेंट एंड फर्दर। ओके, सो राइट कीजिए आप, क्या आया हमारे पास, कर्ल यू ओवर कर्ल एक्स इंटू कर्ल एक्स ओवर कर्ल आर। लिखिए कर्ल यू ओवर कर्ल एक्स इंटू कर्ल एक्स ओवर कर्ल आर प्लस कर्ल यू ओवर कर्ल वाई एंड कर्ल वाई ओवर कर्ल आर। सेकेंड जो एलिमेंट है वो हमें कैसे मिलेगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर कर्ल यू ओवर कर्ल एक्स ओवर कर्ल एस प्लस कर्ल यू ओवर कर्ल वाई इंटू कर्ल वाई ओवर कर्ल एस। फाइन, उसके बाद सेकेंड रो को जब आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा, कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स ओवर कर्ल आर प्लस कर्ल वी ओवर कर्ल वाई इंटू कर्ल वाई ओवर कर्ल आर। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कई बार टंग जो है वो स्लिप कर जाती है, कुछ हम गलत लिख जाते हैं सही लिखते लिखते। नेक्स्ट एलिमेंट इज, इस रो को आप जब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू गेट इज कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स ओवर कर्ल एस प्लस कर्ल v ओवर कर्ल y एंड कर्ल y ओवर कर्ल s। डिटर्मिनेंट क्लोज। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म जो हमें मिली है वो क्या है, कर्ल u ओवर कर्ल x इंटू कर्ल x ओवर कर्ल r प्लस कर्ल u ओवर कर्ल y इंटू कर्ल y ओवर कर्ल r। आपको क्या लगता है कि ये जो क्वांटिटी है ये हम पहले निकाल चुके हैं ना, ये किसकी वैल्यू है, जरा देखिए, x को जरा सा थोड़ा सा छुपा के ऐसे देखिए, क्या है हमारे पास, ये कर्ल u ओवर कर्ल r, कर्ल u ओवर कर्ल r। ये वैल्यू जो थी हमें यही तो मिली थी ना, कर्ल u ओवर कर्ल r। कंफ्यूजन ना हो, हम इन्हें ना इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो यही है जो हमें इक्वेशन 1 से मिला है, तो इसकी जगह डिटर्मिनेंट में हम क्या पुट कर सकते हैं, कर्ल यू ओवर कर्ल आर पुट कर सकते हैं। उसी तरीके से जब आप सेकंड टर्म को देखिएगा हमें ये क्या मिल रहा है, कर्ल यू ओवर कर्ल एस मिल रहा है। हाथ रख के देखिए, थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो कर्ल यू ओवर कर्ल एस मिल जाएगा, जो आप कहाँ से देख सकते हैं, इक्वेशन 2 जो है हमारे पास वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। फाइन, उसके बाद इसी तरीके से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की जब ये वैल्यूज़ को आप यहाँ डिटर्मिनेंट के अंदर पुट करोगे तो आपको ये चारों टर्म्स मिल जाएंगी। पुट करके देखते हैं हमें फाइनली जो है वो क्या मिला। सो RHS जो है हमें वो क्या मिली है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास जो क्वांटिटी आई है वो क्या आई है, कर्ल यू ओवर कर्ल आर, कर्ल यू ओवर कर्ल एस, कर्ल वी ओवर कर्ल आर एंड कर्ल वी ओवर कर्ल एस। और यही जो था वो किसके इक्वल था, कर्ल यू वी ओवर कर्ल आर कोमा एस। स्टूडेंट्स यही हमारी RHS थी, ठीक है, और जो हमने कहाँ से प्रूव की है, LHS से प्रूव की है। तो हमारे पास क्या हो गया प्रूव यहाँ पे, कर्ल यू कोमा वी ओवर कर्ल आर कोमा एस इज इक्वल टू कर्ल यू वी ओवर कर्ल एक्स वाई इंटू कर्ल एक्स वाई ओवर कर्ल आर एस।
ये चीज़ हमें प्रूव कर दी हमने, और ये हमने कहाँ से प्रूव की, इस क्वांटिटी से प्रूव की, कर्ल यू ओवर वी कर्ल एक्स कोमा वाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इनकी मल्टीप्लाई जो है वो हम लेके चले थे, कर्ल यू वी ओवर कर्ल एक्स वाई ओवर कर्ल आर एस। और जब हमने इसको सोल्व किया तो हम कहाँ पहुँच गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर्ल यू वी ओवर कर्ल आर एस। सो एल एच एस इज आर एच एस, हैंस प्रूफ। हमारी ये थ्योरम जो है प्रूफ हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक और थ्योरम जो है उसकी बात करते हैं। ये थ्योरम हमें क्या स्टेट करती है, इफ u जो है हमारे पास एक फंक्शन है x कोमा वाई का, और v जो है वो भी हमारे पास एक फंक्शन है x कोमा वाई का, एंड इफ इनवर्स फंक्शन ऑफ x is equal to phi u comma v and y is equal to psi u comma v exist। हमें क्या गिवन है कि x जो है वो फंक्शन है u और v, x और y का, v जो है वो फंक्शन है x और y का, और अगर उनके इनवर्स फंक्शन जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। अब आप कैसे कह सकते हो कि u और v की ये इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि देखिए u जो है वो फंक्शन है एक्स वाई का, v जो है वो फंक्शन है एक्स वाई का, और यहाँ हमने क्या लिखा है, जस्ट ऑपोजिट, बिल्कुल इसका इनवर्स, कि x जो है वो फंक्शन है u v का, और जो y है वो फंक्शन है u v का, वो एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे हर बार इस तरीके से लिख पाएँ। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तभी आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। इन्वर्स के एग्जिस्ट करने की कुछ कंडीशन है जो हम किसी और लेक्चर में ज़रूर आपको समझाएंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो। इन्वर्स एग्जिस्ट करने की भी हमारे पास कंडीशन होती है फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि इनका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देन तो हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी इज इक्वल टू 1। कन्फ्यूज नहीं होएगा, यही जो है जैकोबियन को डिनोट करता है, यही उसकी दूसरी नोटेशन है। जैकोबियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे अगर हम प्रूफ करें तो हमें क्या प्रूफ करना है कि यू वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई के जैकोबियन के साथ विद रिस्पेक्ट टू यू वी, तो ये क्वांटिटी जो है वो 1 के इक्वल मिलती है। क्या आप एक चीज़ ऑब्जर्व यहाँ कर पा रहे हैं कि जब भी हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं और वो अगर 1 आ जाए, तो आप सिंपली नंबर सिस्टम में अगर आप सोचिए 5 और 1/5 को ही मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। किन्हीं भी दो क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जनरली एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं जब हमें 1 मिलता है। तो हम आगे इसको प्रूफ करने के इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज जो है एक दूसरे का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। सबसे पहले अगर हम थ्योरम को यहाँ पे प्रूफ करने जाएं, करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स प्रूफ। क्या कह सकते हैं, हमें u जो है वो फंक्शन है एक्स वाई का। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू फंक्शन ही तो है एक्स और वाई का। तो मैं इस f को नाम दे दूं u। इससे क्या होगा, सिर्फ हमें आसानी होगी ये समझने में कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम u के बारे में बात कर रहे हैं कि u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड v के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमें जी एक्स वाई गिवन है, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं v ऑफ एक्स वाई। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स। कभी भी अपनी बुक्स में ऐसे देख के कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये फंक्शंस इसने अलग कैसे डिफाइन कर दिया। ये सिर्फ हमारी ईज के लिए है कि हम उसे क्या नोटेशन देते हैं। हम इसको एच एक्स वाई जेड कुछ भी हम नोटेशन दे सकते हैं। तो जनरली ये चीज़ होती है हमारे लिए कि हम जनरली फंक्शंस के लिए यू वी एफ जी एच जैसी टर्म्स का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स के लिए एक्स वाई जैसी टर्म्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारी कन्वीनियंस के लिए आप अगर बुक में देखेंगे तो आप इसने u को यू एक्स वाई लिखा है। स्टूडेंट्स बेशक आप एफ जी से कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें जो प्रूफ करना है ना वो क्या है, हमारे पास जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। हम यहाँ क्या करते हैं कि u और v इन दोनों चीज़ों को ना डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। ये स्टूडेंट्स नॉट विद रिस्पेक्ट टू x और y, विद रिस्पेक्ट टू u और v। ऐसा हमने क्यों किया, आप आगे ज़रूर समझेंगे इस चीज़ को। देखिए ज़रा, अगर हम u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू u, सबसे पहली बात तो जब u का अब u के ही रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी आपको क्या मिलने वाली है स्टूडेंट्स, 1 मिलने वाली है। फाइन, जब आप u का खुद के ही रिस्पेक्ट में करेंगे, सिंपली आप सोच के देखिए, आप x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है। तो क्या हुआ, x y नहीं है तो u हो गया, v हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 मिलेगा। अब डेफिनेशन लगाइए पार्शियल डेरिवेटिव की। अब हमें यहाँ क्या गिवन है
कि यू वी जो है वो फंक्शंस है स्टूडेंट्स एक्स वाई के। और फिर हमें एक चीज़ और भी तो गिवन है ना कि एक्स और वाई जो है वो इनवर्स फंक्शंस है, और वो किसके फंक्शन है, यू वी के। तो हम क्या ऐसा नहीं कह सकते कि इसको एक बार के लिए हाइड कीजिए कि एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू वी। आप यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू वी। तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते इस चीज़ को? बिल्कुल लिख सकते हैं कि यू वी जो है वो फंक्शन है एक्स वाई की, और एक्स वाई जो है हमारे पास फंक्शन है किसके स्टूडेंट्स, यू वी की। तो यहाँ पे इस चीज़ की आप वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जब आप u का डेरिवेटिव लिखेंगे, u किसका फंक्शन है, x और y का। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, जैसे मैंने तरीका बताया आपको लिखने का, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ x इज फंक्शन ऑफ u एंड v बोथ, लेकिन हमें u के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो अब क्या लिखेंगे, कर्ल x बाई कर्ल u, कर्ल y बाई कर्ल u। आई होप आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी पार्शियल डेरिवेटिव को लिखने में, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी डाल दूंगी। फाइन, इसको अगर हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट इज, उसके बाद हमें u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू v स्टूडेंट्स। अब एक बात बताइए, u और v दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। u v x y के फंक्शन है, फाइन, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x y इज फर्दर फंक्शन ऑफ u एंड v, लेकिन u डायरेक्टली v का फंक्शन नहीं है, ना ही v डायरेक्टली u का फंक्शन है। सो स्टूडेंट्स, u का जब हम पार्शियल डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, क्योंकि u जो है उसमें v की टर्म ही नहीं है, तो उसके रिस्पेक्ट में जब भी आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें 0 ही मिलने वाला है। अब अगर आप डेफिनेशन लगाइए कि u इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस u इज अ फंक्शन ऑफ y स्टूडेंट्स, एंड x इज फर्दर फंक्शन ऑफ v की हम बात करेंगे अब, v एंड y इज अ फंक्शन ऑफ v, नेम इट इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली जब आप v का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे u के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे v के रिस्पेक्ट में, आपको क्या मिला, ये तो सेम ही बात हो गई, u इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v इज 0, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u इज ऑल्सो 0, एंड सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v इज ऑलवेज 0, नो 1, इट इज 1। फाइन, जब आप इसको डेफिनेशन से लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हैं, कर्ल v ओवर कर्ल x प्लस कर्ल v over curl y. Again, x is a function of u guys, function of u, and y is a function of u. Then v is a function of x plus v is a function of y, and x is a function of v. Students, y is a function of v. Name it equation 3 and equation 4. I hope आपको फास्ट नहीं लगा होगा, ये स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं मान के चल रही हूँ कि थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको आती हैं, ताकि हम इसके बाद एग्जाम्पल्स जो हैं, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी टैकल कर सकें। उसके बाद जो हमें प्रूव करना था ना स्टूडेंट्स, उस पर देखिए, हमें इन दोनों की वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन को 1 प्रूव करना था, राइट। तो हम LHS को उठा लेते हैं, उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, उसको 1 के इक्वल प्रूव करते हैं। फाइन, उसके बाद आप इसकी वैल्यू लिखिए, कर्ल यू वी विद रिस्पेक्ट टू कर्ल एक्स वाई इंटू कर्ल एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू कर्ल यू वी। स्टूडेंट्स, आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो आप लिखिए, डिटर्मिनेंट में डेफिनेशन से लिखिए, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, कर्ल यू बाई कर्ल वाई। अब तो ये लिखना आपको बिल्कुल आसान लगता होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कर्ल वी बाई कर्ल एक्स, कर्ल वी बाई कर्ल वाई, बिल्कुल सॉन्ग की तरह इसको लिखिए। इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसी तरीके से जब एक्स वाई को आप लिखेंगे तो कर्ल एक्स बाई कर्ल यू, कर्ल एक्स बाई कर्ल वी, एंड कर्ल वाई बाई कर्ल यू, एंड कर्ल वाई बाई कर्ल वी। सो सिंपल, बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा काम लगेगा आपको ये। फाइन, इसके बाद आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अरे मल्टीप्लाई करना भी आपको बहुत अच्छे से आता है, आप लोग तो भाई ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से आते हैं आपको। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को जब आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स बाई कर्ल यू, प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई, कर्ल वाई बाई कर्ल यू। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल गया है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज कर्ल यू बाई कर्ल एक्स बाई कर्ल वी, प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई एंड कर्ल वाई बाई कर्ल वी। उसके बाद सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ, तो मैं इसको लिख देती हूँ जल्दी से। तो हमें क्या मिल गया, कर्ल वी बाई कर्ल एक्स बाई कर्ल यू, प्लस कर्ल वी बाई कर्ल वाई बाई कर्ल यू। कर्ल वी बाई कर्ल एक्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आई नो,
थोड़ा सा आप इन्हें हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आपको क्या लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ईजी चीज़ है, मैम इसको क्यों इतना सोल्व कर रही हैं। लेकिन क्या होता है कई बार स्ट्रेस में, एग्जाम्स की स्ट्रेस में जो है आप गलतियां कर देते हैं। जब तक आप मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार हाथ से निकालिए, तभी जो है आपको हर एक चीज़ लिखनी आएगी, नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे। इसकी वैल्यू आप स्टूडेंट्स पीछे निकाल चुके हैं, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स बाई कर्ल यू प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई बाई कर्ल यू। क्या है ये चीज़, देखिए जरा, कर्ल यू बाई कर्ल यू है ना ये, और कर्ल यू बाई कर्ल यू हम 1 निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स। और ये क्या है, कर्ल यू बाई कर्ल वी है, दिस इज 0, कर्ल वी बाई कर्ल यू है, दिस इज अगेन 0, एंड कर्ल वी बाई कर्ल वी है विच इज 1। इस डिटर्मिनेंट को जब आप लिखेंगे खोल के तो आपको क्या मिल गया, 1, विच इज RHS। हमें यही प्रूव करना था। और आप एक बात बताइए, छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं, अगर 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो 1 के इक्वल है, तो आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो a इज इक्वल टू 1/b? लिख सकते हैं ना, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो आपकी बुक में आपको एक रिमार्क मिलेगा। रिमार्क क्या कहता है कि सबसे पहली बात यहाँ पे कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट, वो क्या होती है कि b मस्ट बी नॉन जीरो, नहीं तो हमें क्या मिल जाएगा, इनडिटर्मिनेट बन जाएगा भाई, इन्फिनिटी बन जाएगा। उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इन्फिनिटी को थोड़ी ना अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोचिंग क्वांटिटी है, मतलब है तो नहीं ना, ऐसी कोई चीज़ है तो नहीं, तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, गलत हो जाएगा अगर भी हमारा 0 हो गया तो। फाइन, 0 का इन्वर्स नहीं मिलेगा। सो अगर हम ये बात लिखते हैं ना, हमने जो भी थ्योरम प्रूफ की है, इससे अगर हम लिखें कि कर्ल यू कोमा वी और कर्ल एक्स कोमा वाई के रिस्पेक्ट में अगर नॉन जीरो है ना स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिख सकते हैं कि यू वी का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, partial derivative of x y with respect to u v. Am I clear students? Am I clear? हमने यही प्रूव किया था, this multiply this is equal to 1। अगर ये क्वांटिटी नॉन जीरो है तो आप इस क्वांटिटी को इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हो। देखने में कैसा लग रहा है, uv का डेरिवेटिव एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करो तो एक्स वाई का uv के रिस्पेक्ट में करोगे तो उल्टा हो जाएगा। आप कहोगे मैडम नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना, अब कर ली ना, तो ये सिंपल सी बात लग रही है। जरूरी नहीं है कि हर जगह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अप्लाई हो। आप आगे ग्रुपिंग पढ़ेंगे, इन्वर्स वगैरह सीखेंगे, जरूरी नहीं है हमेशा रेसिप्रोकल करने से आपको इन्वर्स मिल जाए। फाइन, सो थैंक यू फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं थोड़ा अप्रिशिएट होंगी। और अगर कोई भी अगर मिस्टेक हो तो आप ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ ना आया हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए या मुझे मेल कीजिए, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज फॉर यू। ओके फाइन, इसका नेक्स्ट सेशन जो है उसके अंदर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस को सीखेंगे। सो बी हेल्दी, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।